3. Shalom, Jesus generation. प्रभु आपको शांति दे प्रभु के लोगों। Blessings to you all in the name of Jesus Christ. आप सबको आशीष मिले प्रभु यीशु के नाम में। So this is part 2 of financial blessings. ये दूसरा हिस्सा है आपकी संपन्नता की आशीषों का। I was teaching on prosperity and poverty. मैं आपको बता रहा था गरीबी और संपन्नता के बारे में। So this is part 2. और ये दूसरा हिस्सा है। Genesis chapter 15 verse 7 to 11. और उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 7 से 11। And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of the Ur of the Chaldees to give this land to inherit. And he said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit it? And he said unto him, Take me an heifer of 3 years old, and she goat, and offer it. And he took unto him all these, and divided them in the midst, and laid each piece one against another. But the birds divided he not. And when the fowls came down upon the carcasses, Abraham drove them away. So I want to teach you something. Abraham asked God, God, yes, you are saying that you will give me a child. But what is the sign? Then God said, raise an offering. Go and raise one altar, raise an offering. So he raised an offering, he offered an offering. As he was giving offering, it says in verse 10, and he took unto him all this divided, and fowls came, birds came. And verse 11 says, and when the fowls came down upon the carcasses, Abraham drove them away. So the fowls in Bible represents demons. So whenever you are giving offerings to God, demons are after your seed. Fowls represents demons. So demons came to disturb Abraham, but Abraham drove them away. If I want to say you that these fowls, these demons wanted to take this offering which Abraham placed on altar, so that he will not give to God. Amen. तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझे इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, एक पिंडुक, कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम जो है अपने भविष्य को लेकर और उस आशीष को लेकर जो परमेश्वर ने उसको देने का वायदा किया था, उसके लिए परमेश्वर से पूछ रहा था, और परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी एक भेंट को लेकर आ। जब अब्राहम ने उस भेंट को लेकर आया, तो हम देखते हैं कि कुछ मांसाहारी पक्षी आए और उस भेंट के ऊपर उन्होंने हमला करने की कोशिश की। फिर हम देखते हैं कि कैसे अब्राहम ने उन मांसाहारी पक्षियों को वहां से उड़ा दिया। अब्राहम क्या कर रहा था? मांसाहारी पक्षी हम जानते हैं कि बाइबल में दुष्ट आत्माओं को दर्शाती है, और जब भी कभी आप भेंट की बात देखें तो दुष्ट आत्मा आपकी भेंट को चुराना चाहती है, आपकी भेंट को हथियाना चाहती है। लेकिन यहां पर अब्राहम ने क्या किया? जब दुष्ट आत्माएं रूपी इस पक्षी को, जब वो आए उस धन को लेने के लिए, उस भेंट को लेने के लिए, अब्राहम ने उनको उड़ा दिया। So that is what you are supposed to do, like our father Abraham. इसी प्रकार से हमें करना चाहिए जैसे हमारे पिता अब्राहम ने किया है। All your precious offerings, you should never use them for your personal life. जो भी आपकी भेंट है, आपको अपनी निजी जिंदगी के लिए इस्तेमाल नहीं Do करनी not है। sow somewhere else. The seed that belongs to God, do not sow in business. आप अपने उस पैसे को जो परमेश्वर का हिस्सा है, उसको अपने व्यापार में इस्तेमाल ना करें। That is how demons are after your seed. इसी प्रकार से दुष्ट आत्माएं जो हैं वो उस बीज के पीछे पड़े हैं। So that is why I always say, whenever you receive any prophetic dream about blessings or anything, raise a seed and give to that man of God. इसलिए मैं अभी अक्सर कहा करता हूं कि जब भी आपको एक ऐसा नबूवतीय दर्शन आ जाए या सपना आ जाए, तो आप तुरंत एक भेंट को लें और उस भेंट को बोएं खुदा के दास के पास। You will say to God, God, the dream which you have given to me, I am going to sow this seed so that the dream will come to pass. God, the prophetic word which you spoke through prophet, I am sowing for that prophetic word. Let that prophetic word come to pass in my life. So that is what happened with Abraham. So God gave a prophetic word to Abraham, and Abraham said, God, what is the sign? Please tell me how it will come to pass. Then God said, raise a offering. और इसी प्रकार से जब हमारे पास कोई भी नबूवत का या कोई सपना आता है, या कोई परमेश्वर का नबी हमें कोई परमेश्वर की द्वारा भविष्यवाणी देता है कि हम उन्नत होंगे, तो हमें तुरंत अपना बीज निकालना चाहिए और वो बीज बोना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे पिता अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर से सवाल किया कि तू मुझे आशीष देगा, कैसे देगा? तो परमेश्वर ने उससे कहा अपनी भेंट लेकर आ। वो भेंट को लेकर आया और उस भेंट को लेकर आने के बाद उसे आशीष मिली। Genesis chapter 22 verse 1 to 2. उत्पत्ति 22 और उसका 1 से 3। And it came to pass after these things that God tempted Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। So Abraham was saying, everything I have, here I am, Lord.
Everything that belongs to me belongs to you. Even I myself belongs to you. Here I am, Lord. Please tell me. तो अब्राहम यहाँ पे क्या कह रहा है? परमेश्वर, मैं यहाँ पे हूँ, जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, जो कुछ मेरे पास है वो सब तेरा ही है परमेश्वर। It says God tempted Abraham. ये यहाँ पे ये कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। Let us read how he tempted Abraham. हम ये पढ़ते हैं कि कैसे उसने अब्राहम की परीक्षा ली। And he said, Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. और उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। He says he tempted Abraham by saying, Give me your son, only son, that only son. और ये परीक्षा परमेश्वर ने उसको कैसे ली? वो परमेश्वर ने उससे कहा, जो तेरा इकलौता बेटा है तू उसे मुझे दे, Whom you lovest, जिसे तू बहुत प्यार करता है। not whom you hatest. ये नहीं कहा लिखा कि जिससे तू नफरत करता है। So God will say sometimes, that gold which you like, give to my church, whom you love. That only gold which you have, give to my church. और परमेश्वर कभी कभी आपसे कहेगा, वो सोना, वो इकलौता सोना जिससे तू बहुत प्यार करता है, लगाव करता है, उसे तू मेरे भवन में लेकर आ। Give that money which you are saving for years. Give me, which you love. The only money which you saved, which you love, not the one which you hate. जो तूने बचा कर रखा हुआ धन, जो तूने अपनी बचत की है, वो जो तेरे प्रिय धन है, तू उसको मेरे पास लेकर आ। Don't give me that which is left over or that which you hate. और वो चीज मुझे ना दे जिस चीज से आपको नफरत है या जो चीज बची हुई है। And many a times when God tempts church like this, they will say, no, this is the voice of devil. और कई बार जब चर्च में ऐसी आवाज आती है तो लोग कहते हैं, नहीं नहीं, ये तो शैतान की आवाज है। Why would God ask me that only gold? क्यों परमेश्वर चाहेगा कि वही धन मैं उसे दूं? Why would God ask me that money which I saved for years? और परमेश्वर वही चीज क्यों मांगेगा जो मैंने कितने सालों से बचत की है? Why would God ask me that land to give to a pastor for church which I am saving for years? और वो जमीन क्यों परमेश्वर मुझसे कहेगा कि खुदा के दास को दे ताकि वो वहां पे भवन बनाए जो मैंने बरसों से जमा करके रखी हुई Today I है? am sure, 100% sure that people will fail the test when it comes to giving. और मैं जानता हूं कि आज के युग में बहुत सारे लोग इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे जब बात आती है देने की। Because when God asks you precious things, you will say that this is the voice of devil or pastor wants money. और जब परमेश्वर कभी आपसे वो चीज मांगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, तब आप अक्सर ये कहते हैं कि ये शैतान की आवाज है, जरूर ये शैतान ही कह रहा है। In Bible, God did not ask everyone. और हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे चीजें नहीं मांगी। He tempted only Abraham. उसने सिर्फ अब्राहम की परीक्षा ली। He never tempted Abraham's brother. उसने कभी भी अब्राहम की भाई की परीक्षा नहीं ली। He never tempted Ishmael. उसने कभी भी इश्माइल की परीक्षा नहीं He ली। tempted Isaac. उसने इसहाक की परीक्षा ली। He never tempted Esau. और उसने एसाव की परीक्षा नहीं ली। He tempted Jacob. उसने याकूब की परीक्षा He की। is the God of Abraham, Isaac and Jacob. और वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का A परमेश्वर है living God. और एक जिंदा परमेश्वर। These three people were very wealthy. और ये तीन लोग बहुत ही ज्यादा अमीर थे। If God is asking you something, और अगर परमेश्वर आपसे कुछ चाह रहा है go and sow. और आप जाकर बोए, God will bless you. आपको परमेश्वर आशीष देगा। Let us read what happened. और हम देखते हैं कि क्या हुआ। Genesis chapter 22 verse 10 to 12. और 22 उसके 10 से 12 तक। And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do anything thou unto him. For now, because you're sacrificing your precious thing, now I know that you fearest God, seeing that thou hast not withheld thy son, thy only son from me. फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसकी पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उसको कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता। देखो, अब्राहम ने उस अपने इकलौते पुत्र को, जो इकलौता था, उसको भी परमेश्वर के लिए लेके आया। When you give sacrificial offerings like this to God, जब आप अपने उत्तम से उत्तम अपना जो खास होता है भेंट वो परमेश्वर के लिए लेके आते it हैं, shows that you fear God. ये दर्शाता है कि आप परमेश्वर का भय मानते हैं। You're wearing a white cloth आप जब सफेद कपड़े पहनते हैं or covering your head, और जब आप अपने सिर को ढांकते हैं lifting your hands, और आप जब अपने हाथों को उठाते हैं, you think that is fearing God. और शायद आप सोचते हैं कि ये परमेश्वर का भय मानना है। What is the meaning of fearing God? ये परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? You are obedient to Him.
आप उसके प्रति आज्ञाकारी रहे। So here Abraham was obedient to God. यहाँ पर अब्राहम जो है वो परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है। That's what angel said. You are fearing God. और वही तो स्वर्गदूत ने कहा कि तू परमेश्वर का भय मानता है, Because now I know you fear God because of the sacrifice. क्योंकि अब मैं तुझे जानता हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि तूने एक बलिदान दिया है। Then read from 15 to 18. और अब हम 15 से 18 तक पढ़ेंगे। And the angel of the Lord called unto Abraham और फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, and said, Myself I have sworn, said the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thy only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of heavens, as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gates of his enemies, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Amen. यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया कि अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। So God is making a covenant with Abraham. और परमेश्वर यहाँ अब्राहम से एक वाचा बांध रहा है। So whenever you give to God, He will make a covenant with you. जब भी आप परमेश्वर को देंगे वो आपसे एक वाचा बांधेगा। When you are a blessing to church, God will be a blessing to your household. जब आप अपनी कलीसिया के लिए आशीष देते हैं तब आपको भी परमेश्वर की तरफ से आशीष मिलेगी। Now God is swearing on Himself. और परमेश्वर यहाँ अपनी ही कसम खा रहा है, I will surely bless you मैं निश्चय तुम्हें आशीष दूंगा, because you gave me your son. क्योंकि तूने अपने पुत्र को मुझे दिया, I am going to give you my son. और मैं तुझे अपना पुत्र दूंगा। My son will come from your nation, मेरा जो बेटा है वो तेरे राज्य से आएगा, and your nation will be a blessing to all the nations in the world. और तेरा जो राज्य है वो सारी दुनिया के राज्यों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। So Abraham gave son, तो अब्राहम ने अपना पुत्र दिया, and God is promising that his descendants will be blessed. और परमेश्वर क्या उसको आशीष दे रहा है कि उसके जो पुश्ते होंगे वो आशीषित होंगे। And it says और वो क्या कहता है, God is going to bless their generations और परमेश्वर उनके वंशजों को आशीष देगा because of your seed, तेरे उस बीज के कारण, because you are giving and you are a blessing to the church. और तेरे देने के कारण और तेरे आशीष बनने के कारण कलीसिया के लिए God is not only going to bless you, न केवल परमेश्वर तुझे आशीष देगा, but your descendants will be blessed. पर तेरे वंशज भी आशीषित होंगे। You will find them in blessings and with good health. आप देखेंगे कि वो एक अच्छी सेहत को पाए हुए और अच्छी आशीषित भी जीवन And जीने। verse 17 says they will possess the gates of enemies. और 17 आयत में लिखा है कि वो तो शत्रुओं के फाटकों पर प्रबल होंगे। Your seed will possess the gates of enemies. जो आपका बीज है वो शत्रुओं के फाटकों के ऊपर भी धावा कर लेगा। So give your seed to the kingdom of God तो आप अपने बीज को परमेश्वर के राज्य को दें and say, God, और आप कहें, परमेश्वर let this seed possess the gates of mine enemies. मेरा ये बीज मेरे दुश्मनों के ऊपर हावी हो जाए। What is the meaning of possession? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हावी हो जाना। Possession means having dominion on lands, और हावी होने का मतलब है कि जमीनों पर आपका कब्जा हो जाए, dominion on many things, money, riches, cars. और आपका कब्जा कार्स पे और बहुत सारी धन की चीजों पर। No demon can touch you. आपको कोई दुष्ट आत्मा छू नहीं So सकती। it says your seed will possess the gates of your enemies. और ये क्या कहता है कि तेरा जो बीज है वो दुश्मन के फाटकों पर प्रबल हो जाएगा, And also it means your children will become great. और तेरे बच्चे जो है वो महान होंगे, They will be in a good situation. और वो एक अच्छी हालत में होंगे। So this is the life you will live when you give a sacrificial giving to God. तो ये इस प्रकार का जीवन आप जिएंगे जब आप एक बलिदान दिया हुआ भेंट प्रभु को चढ़ाएंगे। Genesis chapter 26 verse 1 to 5. और 26वीं अध्याय 1 से 5 उत्पत्ति। There was a famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of Philistines unto Gerar. And the Lord appeared unto him and said, Go not down into Egypt, dwell in the land which I tell you. उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को इस फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। See, because of the seed which Abraham gave to God, God is remembering his children Isaac, and God is saying, I will bless you for the sake of Abraham, because I made covenant with Abraham, and I am going to bless you. I will bless those who bless you, I will curse those who curse you, and I am going to bless you with prosperity as I bless Abraham.
और अब्राहम के उस बीज के कारण जो अब्राहम ने परमेश्वर को वो उत्तम भेंट चढ़ाई, उस उत्तम भेंट के कारण परमेश्वर अब्राहम की संतानों को भी याद कर रहा है, और परमेश्वर अब्राहम की संतानों को यहाँ पे बरकत दे रहा है कि तुम आशीषित होगे, तुम धन्य होगे, और परमेश्वर उन्हें हर प्रकार की आशीष दे रहा है। So God will bless your descendants because of your giving. और परमेश्वर आपके देने के कारण आपके तमाम वंशजों को भी आशीषित Your करेगा। children will not face what you face in your life. आपके बच्चे वो चीज नहीं देख पाएंगे जो आपने अपने जीवन में देखे। Then let us read from verse 12 to 14. हम 12 से 15 भी पढ़ेंगे। Then Isaac sowed in that land and received in the same year an hundredfold, and the Lord blessed him. फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी साल में 100 गुना फल लाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। In a great famine he sowed a seed. अकाल के समय में उसने बीज बोया। Even in your great famine, अपने जीवन के भी अकाली के हालत में make sure you're giving to the house of the Lord. आप उस समय भी खुदा के भवन में बोए। When you're going through distress and famine in your life, आप जब अपने जीवन में तंगी और हर प्रकार के आपके जीवन में अकाली का माहौल हो, if you want to change your financial situation in this year, अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपकी जो माली हालत है वो सही हो जाए, give that precious offering to God. आप अपनी उत्तम भेंट प्रभु के पास लेकर आए। Sow in that famine, आप उस अकाल के समय में बोए, and it says Lord has blessed him. और ये बताता है कि परमेश्वर ने फिर उसे आशीष दी, Hundredfold blessing. और 100 गुना आशीष दी। Not only money, और ना केवल धन, you will receive wife. और एक अच्छी पत्नी, You will be blessed with the fruit of the womb. और फिर एक गर्भ की आशीषें। Your business will flourish. आपका व्यापार बढ़ेगा, Your ministries will flourish. आपकी सेवकाई बढ़ेगी, You will prosper. आप संपन्न होंगे। And it says the man waxed great and went forward until he became very great. और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चलेगी यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। So you will become very great when you sow a precious offering to God in your famine. आप बहुत महान व्यक्ति बनेंगे जब आप अपनी उत्तम भेंट को प्रभु के पास लेकर आएंगे। For he had possession of flocks, possession of herds, store of servants, and Philistines envied him. जब उसकी भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे ढा करने लगे। So he got so much of blessing in famine. और अकाल के समय में उसको इतनी बरकतें मिल गई। Now this is the season of famine. Many are losing their jobs. और ये जो समय जिसमें हम जी रहे हैं अभी, ये अकाल का समय, बहुत लोगों ने अपनी नौकरियों को गवा दिया। Many are scared and they are fearing that how they will survive if they lose their jobs. और कई लोग जो हैं वो इस बात से डर रहे हैं कि वो कैसे जी पाएंगे अगर आने वाले दिनों में। I encourage you all to sow seed for your bright future and for your family and for your business, for your ministry, for your child. तो मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने परिवार के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने भविष्य के लिए अपने उत्तम बीज को बोएं। I encourage you all to raise 12 seeds for this year, और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप 12 बीज को निकालें, so that you will not suffer in this year. ताकि आप इस साल में आप गरीबी को ना देखें। So they will not steal your money to the medium of sickness. और फिर शैतान आपके पैसे को गरीबी के द्वारा, आपके पैसे को बीमारी के रूप में ना छीने। Raise an altar for your family and for yourself, आप अपने और अपने परिवार के लिए एक वेदी बनाएं, so that God will speak for you. और फिर परमेश्वर आपके लिए बोलेगा। That seed will speak for you this year. वो बीज जो आप बोएंगे वो आपके लिए बोलेगा। And let us read what happened in the life of Jacob. और फिर हम देखते हैं कि याकूब के जीवन में क्या हुआ। Genesis chapter 27 verse 1 to 4. उत्पत्ति 27 उसका 1 से 4। And it came to pass that when Isaac was old and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his eldest son and said unto him, My son. And he said unto him, Behold, here am I. And he said, Behold, now I am old, I know not the day of my death. Now therefore take, I pray thee, thy weapons, and take me some venison, and make me savory meat such as I love, and bring it to me that I may eat, that my soul may bless thee before I die. So read from verse 4. Please read from verse 4. तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। So now Isaac want to release his Abraham blessing which he received from his father, and he want to give to his son. So he's saying, give me that thing which my soul loves, which I love, not the one which you love. अब याकूब यहाँ पर, इसहाक यहाँ पर एक ऐसी स्थिति में है जहां पर वो आशीष जो उसे अब्राहम से मिली है, वही आशीष को वो अब अपने पुत्रों में देना चाहता है। इसलिए वो अपने पुत्रों से क्या मांग कर रहे हैं कि मेरे लिए एक उत्तम भोजन बनाओ, वो जो मुझे पसंद है, so that my soul will bless you. ताकि मेरा प्राण जो है वो तुम्हें आशीष दे। So don't give to God that which is left over or that which you like. और वो चीज मत दे जो आप चाहते हैं कि ये चीज मैं दूं, या जो चीज बची हुई होती है।
Learn from the word of God. तब आप परमेश्वर के वचन से पढ़ें, Ask Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से पूछें, He will tell you what to give to God. अब वो आपको बताएगा कि आपको खुदा को क्या देना है, And take that offering. और फिर उस भेंट को लें। Give to a man of God. आप उस भेंट को परमेश्वर के दास को दें। Whenever you give to a man of God, जब कभी आप खुदा के सेवक को ये भेंट देंगे, give him which he loves you, which he loves the most. आप उसको वो दे जो उसको सबसे अधिक पसंद है। Then his soul will bless you and you will receive blessings. तब उसका प्राण जो है वो आपको और आशीष देगा। When he releases blessings from all his heart, that blessing will surely come to pass in your life. जब वो पूरे हृदय से आपको आशीष देगा तो उसकी आशीषें आपको लगेंगी। Let us read from chapter 27 verse 28. हम 27वें अध्याय की 28 आयत से भी पढ़ेंगे। Therefore God given thee of the dew of heaven and the fatness of the earth and plenty of corn and wine, let people serve thee and nations bow down to thee, be Lord over thy brethren, and let thy mother's sons bow down to thee. Cursed be everyone that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee. और परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उपज से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे वह आप ही श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाए। So how did Jacob receive blessing? तो याकूब ने कैसे आशीष पाई? Just by giving the best thing which Isaac liked. वो उस उत्तम चीज को देकर जो इजहाक को पसंद था, ऐसी चीज देकर उसने आशीष पाई। And what did Isaac did? Just he spoke a word. और इजहाक ने क्या किया? उसने तो केवल शब्दों को बोला, With all his heart. उसने अपने पूरे दिल से उसे बोला। And the blessing went to Jacob. और ये आशीष जो थी याकूब के ऊपर चली This गई। blessing was blessing of prosperity. ये जो आशीष थी ये धन की आशीष थी। And God never spoke to Jacob before. और याकूब से परमेश्वर ने फिर कभी बात नहीं But की when थी। Isaac released blessing on Jacob, God started speaking to Jacob. पर जब इजहाक ने आशीषों को याकूब को दिया, तब से परमेश्वर ने याकूब से बात करनी शुरू कर दी। That is what happened when you please your man of God. यही होता है जब आप खुदा के दास को खुश करते हैं, When he blesses you with all his heart. जब वो अपने पूरे हृदय से आपको आशीष देता है। Now God will to start speaking to you how he is speaking to your man of God. तो परमेश्वर आपसे उसी प्रकार बात करना शुरू करेगा जैसे वो अपने सेवक से करता है। And we will read Genesis chapter 28 from verse 10 to 20. हम 28वां अध्याय उसकी 10 से 20 तक पढ़ेंगे। As Jacob was fleeing from Esau, और जब याकूब एसाव को से भाग रहा था, verse 12 says he dreamed about angels. और 12वीं आयत में लिखा है कि उसने स्वर्गदूतों का सपना देखा। And God spoke to Jacob saying, I am the God of Abraham and Isaac. और परमेश्वर ने याकूब को क्या दिखाया कि मैं अब्राहम इजहाक का पिता हूँ। And God is saying, I will bless you, I will bless your family, and I will make your name very great. Blessed are those who bless you, cursed are those who curse you. और परमेश्वर से कह रहे मैं तेरा वंश बहुत बढ़ा दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष दे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे श्राप दूंगा। But God never spoke to Jacob before. परमेश्वर ने इससे पहले याकूब से बात नहीं की थी। The only prophetic word which was released by Isaac upon Jacob made God to speak to Jacob. ये सिर्फ उस प्रार्थना का नतीजा था जो इजहाक ने याकूब के लिए कह दी थी, उसके कारण याकूब के जीवन में ये आशीषें आ रही थी। Same will be your portion when you give to your man of God. यही आपका हिस्सा भी होगा जब आप खुदा के सेवक को देंगे। The angels and the God and the Holy Spirit which is speaking, who are speaking to man of God will start speaking to you. तो वो जो स्वर्गदूत और जो पवित्र आत्मा जो खुदा के सेवक से बात करता है वही आपसे भी बात करना शुरू करेगा। And Jacob awake out of 16th verse, and Jacob awake out of his sleep, and he said, Surely the Lord is in this place, and I knew it not. And he was afraid and said, How dreadful is this place! This is none other but the house of God. तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो खुदा का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। And he rose up early in the morning and he poured oil upon the rock. भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उस पर सिर पर तेल उंडेल दिया। So the travelers used to carry olive oil. तो जो उस समय के सफर करने वाले लोग थे वो जैतून का तेल अपने पास रखते थे। This oil used to heal from sickness. और ये जो तेल था ये बीमार लोगों के लिए बहुत अच्छा था। It is also used for cooking food. और ये खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता So था। this oil was very precious to Jacob because he was walking in the wilderness. और ये जो तेल था ये तो याकूब के लिए बड़ा कीमती था क्योंकि ये तो सफर में था। But he knows the principle of sowing. लेकिन ये जानता था कि बोने का प्रतिफल क्या है। He learned from his father Abraham and Isaac. उसने अपने पिता अब्राहम और इसहाक से ये चीज सीखी Now थी। he gave this sacrificial oil to God and poured it upon the rock. Rock means Jesus Christ.
और फिर इसने ये अपना जो उत्तम तेल था इसको उस पत्थर पर उंडेला, जिस पत्थर को हम जानते हैं कि वो यीशु मसीह भी है, which means he raised a sacrificial altar. जिसका मतलब है कि उसने एक कुर्बानी को खड़ा किया। Now Jacob was going through so many problems through Laban. और याकूब जो है लाबान के कारण काफी समस्या में था। Let us read what happened. हम देखते हैं क्या हुआ। Genesis chapter 31 verse 11 to 13. और उत्पत्ति 31वां अध्याय उसकी 11 आयत से, And the angel of God spake unto me in a dream, saying, Jacob. And I said, Here I am. And he said, Lift up now thine eyes and see the rams. For I have seen all that Laban doeth unto thee. I am the God of Bethel, where thou anointest the pillar. तब याकूब के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वह धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान ने तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया है और मेरी मन्नत मानी थी। God is remembering that oil. परमेश्वर याद कर रहा है उस कुर्बानी को, उस तेल को। How he is representing himself. वैसे वो उसको दर्शा रहा है। He is saying, You are the one who anointed the altar. I am that the God of Bethel. और तूने वो कहता है कि तू वो है जिसने अपने तेल उंडेला उस वेदी पर, और मैं ही वो हूँ जो जिसके लिए तूने वेदी बनाई। So God remembered that sacrificial giving. तो परमेश्वर ने उस कुर्बानी को याद रखा। And he even remembered the covenant there. और वहां पर परमेश्वर ने उस वाचा को भी याद रखा। Because Jacob said, Please bless me when I am going through problems. और क्योंकि याकूब ने कहा कि कृपा करके मुझे आशीष देना जब मैं समस्या में हूँ। His sacrificial seeds spoke for him in his famine. और ये जो उसकी कुर्बानियां थी उसके अकाली के समय में काम आई। That is what happens when you give to God. यही होता है जब आप परमेश्वर को देते हैं। In the time of distress and famine, जब आपके जीवन में संकट और कमियां हो, then God will bless you. तब आप परमेश्वर आपको आशीष He will देगा give you directions. और आपको वो निर्देश देगा। He will make sure that you will not suffer. वो इस बात को तय करेगा कि आप किसी प्रकार का नुकसान न झेलें। He will speak to your enemies. वो आपके दुश्मनों से बात करेगा। God rebuked Laban in his dream. और परमेश्वर ने लाबान को घुड़का सपने में। God will rebuke your enemies. और परमेश्वर आपके दुश्मनों को भी ताड़ेगा। Your seed will speak for you. आपका बीज आपके लिए बोलेगा। This is the power of giving to God. ये है देने की सामर्थ्य। Let us read from Exodus chapter 12 verse 1 to 3. ये निर्गमन 12 अध्याय 1 से 3 पढ़ते And the हैं। Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of year to you. Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the 10th day of this month they shall take them every man a lamb, according to the house of their fathers, and lamb for an house. फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। So God was saying them to sacrifice a lamb. तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि एक मेमने की कुर्बानी दो। Many a times Moses went to Pharaoh, but Pharaoh said, I will never leave your people. परमेश्वर मूसा बार बार फिरौन के पास गया कि मेरे लोगों को छोड़ दे, लेकिन फिरौन ने लोगों को जाने नहीं दिया। But God said, पर परमेश्वर ने कहा, This time sacrifice a lamb. इस बार तू एक मेमने की कुर्बानी दे। Let every children of Israel shall sacrifice a lamb. और हर एक इजरायली जो है वो मेमने को बलिदान करे। As you know that they were slaves. और आप जानते हैं कि कैसे वो गुलाम थे। And lamb was, it was a very costly one to them. और जो मेमना था वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक जरूरी चीज थी। Yet God said, sacrifice that lamb. और फिर परमेश्वर ने कहा कि तुम उस चीज को मेरे लिए बलिदान करो। What happened then? फिर क्या हुआ? They sacrificed a lamb. और उन्होंने मेमने का बलिदान दिया। In Exodus chapter 12 from 29 to 36. और हम पढ़ते हैं 12 उसके 29 से 36 तक। It says, और यहाँ पे क्या है? God has judged the house of Pharaoh. और परमेश्वर ने उस फिरौन के घर को ताड़ा। All the firstborn were dead. और सारे जो पहलौठे थे फिरौन के घराने के वो सब मर गए। We'll read from verse 31. तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहे हुए अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। See what happened? तो आप देखिए क्या हुआ। The sacrificial giving. जब आप अपने कुर्बानियों को प्रभु को देते हैं, Even the hardest Pharaoh.
और वो जो कठोर फिरौन था, even he said, I will leave you now. और उसने भी कहा कि मैं अब तुम्हें छोड़ दूंगा। The children of Israel received their deliverance. और जो इजरायली संतान थे उन्होंने अपना छुटकारा पा लिया। They did not came out of Egypt with empty hands. और वो जब मिस्र से निकले तो खाली हाथ नहीं निकले, They came with silver and gold. वो तो चांदी और सोने के साथ मिले। It says Egyptians gave them silver and gold. और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मिस्री लोग थे उन्होंने सोना और चांदी बहुतायत से उनको दी। They sacrificed they gave sacrificial giving to God. उन्होंने अपना बलिदान, अपना उत्तम बलिदान प्रभु को दिया। God not only gave them deliverance from Egypt, परमेश्वर ने ना केवल उनको मिस्र देश से छुटकारा दिया, he also sent them with prosperity. और परमेश्वर ने उनको संपन्नता की आशीष भी दी। God gave them favor. परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया। You see, Moses did so many signs and wonders, आप देखते हैं कि मूसा ने कितने चिन्ह और चमत्कार को किए, yet they were living in a hard bondage. और फिर भी वो एक बहुत ही कठोर गुलामी में थे। Might be you have accepted a man of God as a prophet. शायद आपने एक प्रभु के दास को नबी के रूप में स्वीकार किया। Might be you are going to his church for years, शायद आप उनके चर्च में जाते हुए सालों हो गए हो, but you know that Pharaoh, the spirit is not leaving you. वो फिरौन, वो आत्मा आपको छोड़ नहीं रही है। I advise you to do this thing. मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप ये काम करें। Give a sacrificial giving in the house of God. अपने उत्तम कुर्बानी प्रभु को दें। Lord will deliver you from Egypt, from hard bondage. परमेश्वर आपको उस कठोर परिश्रम से छुटकारा देगा, And he will also bless you with prosperity. और परमेश्वर आपको संपन्नता की भी आशीष So this देगा। is the power of giving. ये है देने की सामर्थ। May the Lord give you a willing heart. परमेश्वर आपको एक इच्छा, एक देने वाला हृदय दे। May you be a cheerful giver, आप खुशी से देने वाले बने, so that Lord will be pleased with that offering. ताकि परमेश्वर आपकी उस भेंट से खुश हो सके। So that Lord will bless you and your descendants, परमेश्वर आपको और आपके वंशजों को आशीष दे, as He blessed Abraham, Isaac, Jacob, and children of Israel. और जैसे उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब इजराइल के संतानों को आशीष दी। Then in Exodus chapter 23 verse 15, और निर्गमन उसका 23वां अध्याय, God says, "None of you shall appear before me empty." और परमेश्वर ने वहां पे कहा कि तुम में से कोई भी मेरे सामने खाली हाथ ना आए। So whenever you go to the house of God, तो जब भी कभी आप परमेश्वर के पास आते हैं, don't go with empty hands. तो आप परमेश्वर के पास खाली हाथ ना Many जाएं। people give only tithes, परमेश्वर, कई लोग जो है परमेश्वर के पास जाके सिर्फ दशवांश देते but हैं। God says tithes and offerings. परमेश्वर कहता है दशवांश और भेंट। So you, after giving tithes, दशवांश देने के बाद every Sunday also give offerings. हर रविवार आपको अपनी भेंट भी देनी है। That's why He said, "Never come to my house with empty hands. इसीलिए वो कहता है कि कभी भी तुम मेरे घर में खाली हाथ मत आना। Give me something so that I will multiply it." कुछ तो मुझे दो जिसको भी मैं बढ़ा सकूं। Whenever God wanted to do anything, जब भी खुदा कुछ आपके जीवन में करना चाहता He है, said, "Give me." वो कहता है मुझे दो। Moses said, मूसा ने कहा, "How I should deliver the children of Israel?" मैं कैसे इजरायलियों को छुटकारा दूं? God said, "What is in your hand?" परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? He said, "I have rod." उसने कहा, मेरे हाथ में लाठी है। Okay, I will use the rod. और परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं इस लाठी का इस्तेमाल करूंगा। Then a widow who was suffering, तब एक विधवा जो पीड़ित थी, then she told to Elisha, उसने एलीशा से कहा, "I have debts. मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, Please help me, Prophet Elisha." आप नबी एलीशा मेरी मदद करे। He said, "What do you have?" और उसने कहा, तेरे पास क्या है? She said, "I have oil." उसने कहा, मेरे पास तेल है। So every time God wants to do something, He says, "What do you have?" और जब कभी परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता तो परमेश्वर आपसे पूछता है, तेरे पास क्या है? So there is no harvest without seed. और ये कोई भी कटनी नहीं होती है बगैर बोए के। You cannot reap where you did not sow. तो जहाँ पे आपने बोया नहीं वहां से आप काट नहीं सकते। Even disciples told to Jesus Christ, और यहाँ तक कि चेलों ने भी यीशु से कहा, "We don't have bread to eat." और हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है। Jesus Christ said, "Give me something so that I can multiply." और यीशु मसीह ने कहा, मुझे कुछ दो ताकि मैं उसे बढ़ा सकूं। So they gave him bread and fishes, and he multiplied it. और आप जानते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को वो रोटियां और मछलियां दी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बढ़ा दिया। For God, if you want God to multiply in your life, और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी करे, scatter the seeds. आप अपने बीजों को बिखेरें। Never come to his house with empty hands. कभी भी आप उसके घर में खाली हाथ ना आए। If you go and pray a prayer for prosperity, God will not bless you. अगर आप संपन्नता के लिए दुआ ही करते रहेंगे, प्रभु आपको आशीष नहीं देगा। If you are just praying for prosperity, God is like folding his hands. अगर आप केवल संपन्नता की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बस हाथ बांधे हुए बैठा है। If you sow a seed, जब आप अपने बीज को बोते हैं, then God will plant that seed, तब परमेश्वर उसमें पानी देगा और उसको बढ़ाएगा। and you will reap the fruits. आप फिर उसकी कटनी को काटेंगे। You should give something to God so that he can multiply. आपको कुछ खुदा को देना ताकि वो उसे बढ़ा सके। So this is the reason many Christians are living in lack and poverty. यही वो कारण है जिसके कारण आज बहुत सारे मसीह भाई बहन जो है गरीबी में जीवन व्यतीत They कर रहे come हैं। to God with empty hands. वो परमेश्वर के पास आते हैं खाली हाथ। They never give to God. वो कभी भी खुदा को देते नहीं Even है। if they give the leftover.
और कभी भी वो देते हैं तो वो छोड़ा हुआ देते हैं, They don't give precious offerings. वो अपनी खास भेंट प्रभु को नहीं देते। Hence their lives are life full of setback and hardship. और फिर उनका जो जीवन है वो पूरी प्रकार से गिरावट में जाता है। But why does God is asking money to us? और क्यों प्रभु फिर हमारे से धन की भेंट मांगता है? Because man knows he loves money so much. क्योंकि मनुष्य जानता है कि मनुष्य पैसे से कितना प्यार He करता है। also said, your heart will be where your money is. और उसने ये भी कहा है कि जहाँ पे तेरा धन है वहीं पे तेरा मन भी So होगा। that's why God is saying, my son, give me your heart. और इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बेटे अपना हृदय मुझे दे। That's why he said, first commandment, love your Lord God with all your heart, strength. इसीलिए पहले हुक्म में हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम रख। That's why when a rich man came, he said, give everything to the poor. और इसीलिए जब एक धनी आदमी प्रभु यीशु के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपना सब कुछ गरीबों में बांट दे। That's why he said to disciples, forsake everything and follow me. और इसीलिए उसने चेलों से कहा कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे हो ले। That's why he said to Zacchaeus, give everything to the poor for salvation. और फिर इसीलिए उसने जक्कई से भी कहा कि सब कुछ अपना गरीबों में बांट दे अपने उद्धार के लिए। So when God asks you to give, इसलिए जब परमेश्वर कहता है देने को, you'll take the scriptures which says, freely you received, freely you give. और फिर आप उस आयतों को ले सकते हैं जहाँ पे लिखा है कि मुफ्त में दो और मुफ्त में दिया जाएगा। Don't be like devil, using the word of God to attack God. और फिर आप शैतान के बहकावे में ना आए, आप आयतों को ले और आयतों को लेके खुदा से लड़े। Then Bible also says in the same book, give and it shall be given. और वचन उसी किताब में ये भी बताते हैं कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। It also says freely received, freely give. और वहाँ पे ये भी क्या है कि मुफ्त में तुम्हें मिला मुफ्त में दो। Then why don't you take the scripture which says give and it shall be given unto फिर you? आप उस आयत को क्यों नहीं लेते जहाँ पे लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया When a जाएगा। man of God says give, then you say freely received, freely give. Why I should give to man of God? जब परमेश्वर का दास कहता है कि दो, तब आप कहते हैं कि मुफ्त में मिला है मुफ्त में दो। God is trying your heart. परमेश्वर क्या कर रहा है? आपके दिल को जांच रहा है। He's testing you whether you love him more than money. आपको वो जांच रहा है कि क्या आप खुदा को ज्यादा प्यार करते हैं या पैसों से। He's testing you whether you seek first his kingdom so that all things will be added to you. वो देख रहा है कि क्या आप पहला परमेश्वर के राज्य को खोज रहे हैं ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। When you're supporting for gospel work, जब आप अपने पैसों से प्रभु के राज्य के कामों में मदद करते you हैं, are saving many souls. जब आप बहुत रूहों को बचा रहे हैं, And when you're supporting a man of God, जब आप खुदा के सेवक को मदद कर रहे हैं, you're making his yoke very easy, तो अब आप उसके जुए को मेहनत को आसान कर रहे so हैं। that he will have fellowship with God in fastings and prayers, फिर वो निश्चित होकर प्रार्थना और उपवास में समय बिता सकता है, so that he will be a blessing to you. तो वो आपके लिए आशीष का कारण His बनता है। prayers will bless you. आप उसकी प्रार्थना आपको आशीषित करेगी। Thank you, Jesus. प्रभु का धन्यवाद हो। Shalom. आप सबको शांति मिले।